आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात और जम्मू कश्मीर में आल पार्टीज डेलीगेशन आज का एजेंडा। और आज के एजेंडा में हम जम्मू कश्मीर आए आल पार्टीज डेलीगेशन की ख़ास रिपोर्ट आप तक दिखाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आज आल पार्टीज डेलीगेशन आया हुआ है और इस पर पिछले 58 दिनों की सूरत के दौरान पहली नज़र इसी पर है। आज आल पार्टीज डेलीगेशन जब सुबह करीबन 15 मिनट से 20 मिनट के लेट श्रीनगर के SKICC में पहुंचा तो इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां यहां काफ़ी तेज़ हुई। और इन सियासी सरगर्मी में जहां आज पहले दिन आल पार्टीज डेलीगेशन से कोई आम कश्मीरी तो मिलने नहीं आया, लेकिन सियासत के गलियारों की चहल पहल में सियासी मैदान के सियासी खिलाड़ी सबसे पहले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, BJP या AIP सब जमात आज आल पार्टीज डेलीगेशन से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन सवाल यहाँ पे यही था कि क्या आल पार्टीज डेलीगेशन सईद अली शाह गिलानी या दूसरे अलायदगी पसंद लीडरान से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम आपको पहले अंदर का यह नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पे आल पार्टीज डेलीगेशन हो रहा है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मीडिया से क्या क्या बातें की। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने जब आल पार्टीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग की तो उसके बाद मीडिया से क्या बताया और उसके बाद हम दूसरे लोगों के दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया। I have not heard anything on these lines. I am not expecting any breakthrough from one meeting. To be honest with you, I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. This all-party delegation has a mammoth task ahead of them to rebuild the lost credibility. And they are all responsible for it because they were all part of the 2010 process. They should have followed up as to what happened with the interlocutors report. They should have owned the outcome of that all-party delegation. Their failure to own the outcome of the 2010 all-party delegation has resulted in a dramatic shrinkage of the number of people and delegations that are willing to meet them this time. In 2010, the cross-section of people that was willing to meet the all-party delegation was much wider and much deeper than it is today. Today, I fear, other than a handful of mainstream political parties, at least formally, the number of groups from Kashmir meeting this all-party delegation is going to be very small. And for that, I'm sorry, this mechanism has only itself to blame. Which means that it's like tokenism, sir. One, does it really expose Mehbooba Mufti government because she said we should talk to Hurriyat while they've been actually put behind in a house arrest? The other part being, do you think there's a lack of coordination between BJP and PDP within the state itself? There is a lack of, I think, coordination between the two contradictory sides to Mehbooba Mufti herself. She doesn't know whether she wants to be the government or she wants to be the opposition. And therefore, on the one hand, she says that the sacrifices of those people killed in this agitation will not go in vain. On the other hand, she says that these are only 5% of the population, they're not innocent, they were attacking police stations and they have to be punished. She arrests Hurriyat Conference leaders, puts them behind bars and then writes them a letter and says, look, please give me the time and the place and we will come and meet you. What time and place? They're in jail. How can they give a time and a place? I mean, there has been so much in terms of contradiction that has come from this government that I'm not surprised that we have a problem of this nature. I think first and foremost, the Chief Minister herself has to decide whether she wants to be the Chief Minister or the leader of the opposition. If she wants to be the leader of the opposition, she has to do something else. Sir, do you agree with Mehbooba Mufti that only 5% people are agitating on the streets? Do you agree with Mehbooba Mufti? I'll come to you, Barkha, one second. Do you agree with Mehbooba Mufti that only 5% people are agitating? Absolutely not. Absolutely not. If it was only 5% of the population, are you telling me with all the force at your disposal, there is not a single paramilitary force in the country that does not have representation in Jammu and Kashmir today? Cutting across forces, whether it is SSB, ITBP, even BSF has been re-inducted. And if in spite of that you cannot control what you believe is 5% of the population, and then you appeal to that 5%. Mehbooba Mufti on the one hand says this is 5% of the population. On the other hand, she then says, please give me another chance, I'm like your daughter. Again, another contradiction. So obviously this is not 5%. If it was 5% of the population, would she have had to face the sort of situation that she did in Kulgam yesterday, where as a result of her visit, one more fellow lost their life and this poor fellow's house was set on fire? Or today, our district office in Shupanya has been gutted. This is not because it's 5% of the population.
The spread and the sentiment runs much deeper than that. Do you think that this is going to end up as a photo op, another photo op, another topic? Sorry. Has the all-party mechanism now become redundant? What was your impression from talking to this delegation? Look, I wasn't very enthused about the all-party mechanism even before they came. It's no secret that I had actually told them that their coming will be of no consequence, for the simple reason that our own actions of not following up adequately after the 2010 all-party delegation has resulted in this situation today. So this all-party delegation has a mammoth task in front of them of trying to rebuild credibility, which unfortunately at this point in time, as far as the Kashmir province is concerned, they enjoy very little. All of us on the mainstream side are sort of in the same boat. Sir, any confidence building measure? On the pellet gun, sir. Did you give them any roadmap from your? We've made a memorandum available to them. Copies are lying here. You can all help yourselves when we're done. What about the pellet gun? That was also brought up. That was also brought up. How will be the situation controlled? Now, it is not for me to control this situation. I can only cooperate with the government of the day, which we have been doing to the fullest extent. But it is for the government of the day to take the necessary measures, and by sort of underestimating the scale of the problem, you will not be able to deal with the problem. If in your own head this problem is only 5%, then how can you deal with it? I think you need to recognize the gravity of the situation. You need to recognize how widespread this current agitation is. Only then can you start taking steps to tackle it. देखिए ना, हमने सबसे पहले तो यही कहा है कि ये मसला जो है ये एक सियासी मसला है, इसको सियासी तौर हल करना होगा. हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन को पुरानी बातों का याद दिलाया. जब यहाँ मरहूम राजीव गांधी साहब पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ आए थे देवीलाल साहब के वक्त में, उस वक्त राजीव गांधी साहब ने कहा कि आज़ादी छोड़ के ज़रा सा छोटा सा रिश्ता आप हमारे साथ रखिए, बाकी सारा कुछ ले लीजिए. उसके बाद नरसिम्हा राव साहब का वादा बुर्किना फासो से कि शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई इज़ द लिमिट. हमारे पैर तो ज़मीन से ऊपर नहीं गए, स्काई की तो दूर की बात. और आज हम राम माधव साहब का बयान पढ़ते हैं कि आस्क फॉर द मून बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जनाब, हम लोगों ने जब आइन के अंदर बात की, उसका क्या हशर हुआ? मेरे वालिद साहब ने उस वक्त नरसिम्हा राव को कहा जनाब ये अंदरूनी खुद मुख्तारी में ज़्यादा देरी मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप देने के लिए तैयार होंगे यहाँ लेने वाला कोई नहीं होगा. और बदकिस्मती से हमें आज वही सूरत हाल नज़र आ रही है. ये अगर देने के लिए भी तैयार होंगे, आज शायद लेने वाले जो हैं बहुत कम होंगे. चलिए, आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की और मीडिया के साथ बात अंदर क्या बात की ये पता नहीं है, लेकिन बाहर आके बताया कि उन्होंने कश्मीर के हालात की वकालत की, सूरत बताई 1947 से लेकर 2014, 2016, 2010 और जो भी कुछ भी सूरत हाल है वो आल पार्टीज डेलीगेशन को बताई. और ये भी बकौल उमर अब्दुल्ला उन्होंने बताया कि साल 2010 में जब आल पार्टीज डेलीगेशन कश्मीर आया था तो उन्होंने सब कुछ खो दिया. उमर अब्दुल्ला के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या बताया PDP ने, जिन्होंने आल पार्टीज डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और यहाँ पे मीडिया से ब्रीफिंग भी की. हम आज अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे कुछ कलीग साथ है पार्टी की तरफ से, हम जो आल पार्टी डेलीगेशन आया है दिल्ली से तो उनसे मिले. हमने ज़्यादातर वही जिसके लिए हमारी जमात बनी है PDP, जिसकी बुनियाद है डायलॉग, रिकन्सिलिएशन और बातचीत के ज़रिए कश्मीर का इशू हल हो. हमने वही पे उसी पर ज़्यादा स्ट्रेस हमने उसी पर दिया क्योंकि हमारी जो कायद ने हमारी पार्टी बनाई वो उन्होंने इसीलिए बनाई, कुर्सी उनके लिए मैटर नहीं करती थी, उनके लिए लोग मैटर करते थे. आज लोगों का मसला है, इसलिए हमने वही बात की कि हमारा कश्मीर का जो इशू है पॉलिटिकल इशू है, 60 साल से पॉलिटिकल इशू एक पेंडिंग है. आज आप आए हैं तो इसका एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड हल होना चाहिए. हमने ज़्यादा वही बात की, हमने कोई और बात नहीं की. वही हमारा अपना इशू जो हमारा है बेसिक, जो हमारा एलानिया है जिसके लिए PDP हमने बनाई, तो वही हमने वही बात की. जी साहब, आपकी जो अपोजिशन है उनका कहना है कि PDP और जो BJP है दोनों की विचारधारा जो अलग है, अभी वो किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच पा रही है. उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब मुफ्ती साहब ने BJP के साथ अलायंस किया तो उन्होंने, आपको सबको मालूम है, उन्होंने जब तकरीर की उससे पहले उन्होंने कहा है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाना है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, हमने एक एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा है, रिकॉर्डेड है, आप सब देख सकते हो उसमें रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें.
जो हमारा बुनियादी ऐलाननामा है जिसमें डायलॉग है, पाकिस्तान के साथ बातचीत है, हुर्रियत के साथ बातचीत है, कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत है, मुफ्ती साहब ने हमेशा यह कोशिश की कि हमारी पार्टी ब्रिज बने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जो बातचीत से जो वहाँ जो वहाँ रिजल्ट निकलेगा हम सबको वही मंजूर है। हमारी कोई उसमें वो उनके साथ उतना वो नहीं है जो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। हमारी बहुत सी चीज़ें हमने अपने उस पे एजेंडा पे उनके साथ अलाइंस किया है। हमने उसमें डायलॉग लिखा है, हमने उसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत लिखी है, हमने उसके हुर्रियत के साथ बातचीत लिखी है, जैसे कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो। जैसा कि महबूबा जी ने कल देखिए वो गवर्नमेंट का क्या है, लेकिन हम पार्टी की तरफ से आए हैं। आज हमारी सुनिए मेरी अब आप सुनिए बात करने दीजिए। आज हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने सब लोगों को खुद एक खत लिखा है कि आप आ जाइए, कश्मीर के इशू रिजॉल्व करने आप सामने आ जाइए। तो ये पार्टी की तरफ से है। नहीं, अगर हमने इसीलिए उनको चिट्ठी लिखी थी, वो अगर अपनी ख्वाहिश इजहार करते, हम SKICC में मिलते, वो मिलते। हम अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, हमने इसीलिए चिट्ठी लिखी थी, हम फैसिलिटेट करते। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त गिलानी साहब कहाँ थे? जेल में थे। उन्होंने गिलानी साहब को यहाँ लाया, घर में बिठाया और कहा गिलानी साहब अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। आज भी वही हो सकता था, लेकिन बहैसियत प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर होने के अलावा हमारी वो प्रेसिडेंट है। उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी सबको चिट्ठी लिखी, आप तैयार हो जाइए बातचीत के लिए। तो वो जहाँ चाहते वहाँ बातचीत हो सकती थी। प्रक्रिया है ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है कश्मीर में इस वक्त, तो ये रिप्रेजेंट करता है जो फीलिंग है इन द एंटायर कंट्री, इन द पॉलिटिकल क्लास, जितने भी हैं, चाहे रूलिंग पार्टी है चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हैं। तो एक किस्म का कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि नहीं, कश्मीर में कोई शुरुआत होनी चाहिए मीनिंगफुल डायलॉग की, और एक शुरुआत होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर कैसे इस मुसीबत से निकले जो हमें हर 5-6 साल के बाद काटने को दौड़ती है सूरत हाल, वो कैसे ठीक करें। नईम साहब, मुख्यमंत्री ने जो है अपने तौर पर इन्हें सरकार की तरफ से इन्विटेशन नहीं भेजा हुर्रियत को, बल्कि उन्होंने जो है वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ दैट व्हाट शी हैज़ बीन सेइंग। कल उन्होंने 2 बार बात की, वहाँ अनंतनाग में भी बात की, यहाँ भी इन्होंने चिट्ठी लिखी उनको। The position is कि हम एज PDP एंड एज पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट, हमारी पोजीशन यही है कि अब जम्मू कश्मीर का जो मसला है इसको बातचीत के लिए ज़रिए हल करना चाहते हैं। और ये आज कंसेंसस तो पहले ये बटन नहीं ना होता है। कंसेंसस इज नॉट अ बटन दैट यू प्रेस एंड द सॉल्यूशन कम्स आउट। इट इज अ प्रोसेस व्हिच हैज स्टार्टेड टुडे। होपफुली इट लीड्स टू समथिंग बेटर। सीधा सवाल आखिरी पर, क्या डेलीगेशन हुर्रियत से बात करेगा? डेलीगेशन वो आप वो देखेंगे ड्यूरिंग द डे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, शाम तक आपको पता चलेगा। यूं तो चिनार की बड़ी उम्र होती है और मेरे पीछे ये चिनार शायद 70 साल की उम्र का हो ही सकता है। और इस चिनार ने जहां SKICC में बहुत से मामला देखे होंगे और आज के मामला के जहां ये चिनार भी गवाह रहेगा, वहीं हम भी इस आज की सूरत-हाल के गवाह हैं। और आज जो कुछ भी हमने देखा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जैसे कि हमने बताया कि PDP ने भी मीडिया से बात की, सूरत-हाल बयान की, लेकिन PDP सरकार में है और सरकार को बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। और यहाँ पे भी PDP के जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे लीडरान, सरताज मदनी थे, निजामुद्दीन भट्ट थे, राजा एजाज से, ये जो मीडिया से ब्रीफिंग कर रहे थे, तो मीडिया के तीखे सवाल इन्हें बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल बयान की। और ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिलने के बाद कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि थोड़ा सा कठिन है और इस कठिनाई का इलाज सिर्फ बातचीत में ही है। पॉलिटिकल मतलब इसमें फाइनली हमको आपस में बैठ के निकालना है। करो तो आज करो, वो मेरे लिए भी चैलेंज है, वो उनके लिए भी जो इतने सालों से इस चीज को बनाते रहे। And as a Kashmiri, do you support what the street voice? Yes. That is why we are here. That is why we went to राष्ट्रपति. That is why we went to प्रधानमंत्री. वरना मेरा और प्रधानमंत्री का बनता नहीं, बट चूंकि वो इंस्टीट्यूशन है, हमने उसको प्रधानमंत्री हाउस में जाकर ग्राउंड सिचुएशन बता दी, कंसर्न बताया। हमने वो पीठ पीछे दीवार के बाहर नहीं बातें की, दीवार के अंदर जाकर की। आज भी हम इसलिए आए कि ये दीवार, ये एक फोरम है
ये देश की आवाज़ है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हम कश्मीरियों की आवाज़ वहाँ रखी, चाहे वो पैलेट गन की बात है, चाहे वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात है, आज भी वो। Then do you support आज़ादी for Jammu and Kashmir? नहीं करते। मैं कौन होता हूँ आज़ादी को? वो कह रहे हैं जो आप जी वो आज़ादी कहने को या कोई कहते हैं सब मैं हिंदुस्तान कहता हूँ तो क्या मतलब हिंदुस्तान अभी देते, मगर बात एक है, एक तजब्जुब है। एक तजब्जुब के बाद में इसको एक बार खुले दिल से सबको बैठेंगे। इलाज क्या है? जैसे आज ये 25 लोग 26 लोग आए हैं, बात की आज इस मीटिंग में और आप लोग तो सब एक ही ग्रुप के हैं, आप में से कभी अपोजिशन होता है, कभी गवर्नमेंट होता है, जिनसे बात करनी है उनसे तो बात ही नहीं हुई। आप तो एक ही लोग हैं, कभी कुर्सी बदलते हैं। उनको भी बोलो बात के लिए आपको बुलाया जाए, बात करो। आए हैं और पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई, सभी पार्टीज ने हिस्सा लिया, अपोजिशन ने हिस्सा लिया। अब हम इस उम्मीद के साथ आए हैं जो जज्बा सभी अपोजिशन पार्टीज ने दिखाया था, वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्रीनगर के SKICC में सियासी जमातों से मिलने के बाद आल पार्टीज डेलीगेशन अचानक श्रीनगर के हैदरपोरा में सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर भी पहुंचा और यहां पर डी राजा, शरद यादव समेत जो आल पार्टीज डेलीगेशन के 3 मेंबरान ने ये यहां पे पहुंचे और सईद अली शाह गिलानी पर अंदाज़ा यही पहले था कि शायद सईद अली शाह गिलानी से मुलाकात हो पाएगी, लेकिन गिलानी के घर के बाहर करीबन 3 से 5 मिनट तक रहने के बावजूद जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला गया तो ये डेलीगेशन का जो वफद जो लोग थे ये वापस चले गए। और जाहिर सी बात है जब बाहर निकले तो यहाँ पे मीडिया से भी उन्होंने बात की और मीडिया ने जब इनसे पूछा कि क्या है उनकी सूरत-हाल क्या है, तो यहाँ पे शरद यादव और डी राजा ने बताया कि उन्हें उम्मीद है, अभी उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी और कश्मीर में अमन कायम करने के लिए वो एक बार फिर यहाँ पे गिलानी के दरवाजे तक पहुँचेंगे। यहाँ पे जब ये वापस जा रहे थे तो आसपास के लोग भी निकल आए थे और यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। हमारा मकसद सीधा है, आपके पास मैंडेट है कोई डिसीजन लेने का सर? सारे सब तरह की हम भी तो इस देश के लोग हैं नहीं, आपको इसमें भी हमको नहीं सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास ये ताकत होती है वो और हर कोई डिसीजन ले सकते हैं। जो ही डाल लीजिए ठीक है, ये जगह छोड़िए ना, वो प्रयास भी करते रहते हैं। We conveyed our message. We have come here to see him. Let us see. So you think Gilani is the only option who can bring the peace in Kashmir? No, I don't say that, but he is also one of the stakeholders. He needs to be talked. Dialogue must be held with him also. So do you have any mandate to take the decision related to Kashmir issue, Kashmir situation? No mandate. Now we have come here to express our solidarity with the people of Jammu and Kashmir, and we are very concerned peace and normalcy must return to this state, and the agony through which people are passing through, it must come to an end. And for that we think there must be an unconditional dialogue with all stakeholders. Sir, you have started a whole It is not question of being capable or incapable. It is question of political effort. We will have to do our best to make our efforts to reach. That is one issue you are talking about. What I am saying now, the effort must be to win the confidence of the people and win the minds of the people and to strive for finding a political solution. It is a political. First of all, please understand. First of all, at least as far as I am concerned, and why we have been insisting on an all-party delegation, is to come here to express our anguish, our anxiety and our solidarity with the people of Kashmir, and to understand what are the issues because of which this very deep degree of alienation is there. Now, we convey our sympathies to everybody who's been injured, lost their lives in this entire incident for the last 2 months. We would want to restore normalcy.
we would want to have a dialogue, at least I would want to have a dialogue without any preconditions with every stakeholder. And we think the first and foremost, the objective is to restore normalcy and restore normal life and address all the problems, all the grievances that people of Kashmir are suffering. के साथ बात करती है वो थोड़ी चलता है यहाँ। इनको बोलो बात करो, सबको पहले रिलीज करो। इनको जेलों में बांध रखा है, इनको बोलो रिलीज कर लो पहले सबको, और आवाम से भी मिलो, चौक में आवाम चाहते हैं कि बातचीत से अच्छा नतीजा निकले, क्योंकि हमारा सारा देश, सब पार्टियां एक मत हैं कि कश्मीर का जो सल्यूशन है कोई आपसी बातचीत से हल हो जाए। तो हम कश्मीर से भी ज़्यादा कश्मीरियों को पसंद करते हैं और हमारे लिए कश्मीरी ज़्यादा प्यारे हैं कश्मीर की जगह। तो हम इसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढने के लिए आए। हम कोशिश करेंगे, उनको हमने इनवाइट भी किया, हम चाहते भी हैं कि वो आए हमारे साथ बातचीत करें, बातचीत से कोई ना कोई हल निकले। पिछले 58 दिन की सूरत-हाल के दौरान नज़र सबकी आज के दिन पे थी, और जहां आज ऑल पार्टीज डेलीगेशन कश्मीर में 2 दिन के दौरे के दौरान पहले दिन पे आया हुआ था, वहीं पहले दिन जहां सियासी जमातों से ही, प्रो इंडिया सियासी जमातों से ही बात हुई है, वहीं अब कल पर नजरें भी हैं और कल देखा जा सकता है कि आखिर इस बातचीत का यहाँ पे ऑल पार्टीज डेलीगेशन का नतीजा क्या होगा। क्या 2010 की तरह ऑल पार्टीज डेलीगेशन अब की बार भी कोई बड़ा कदम लेके नई दिल्ली को कश्मीर के मामलात सुलझाने पर मजबूर कर सकता है, या फिर वही होगा ये जिस तरह साल 2010 में सब कुछ हुआ था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर।